Average due date is a due date, right? On which if all the payments which were supposed to be made on different due dates are paid, the payer is not required to pay any interest or he will not receive any rebate. Average due date is that due date which represents different due dates of different payments. समझ में आ रहा है? So instead of making different payments on different due dates, make lump sum payment on a single date. It will result in no interest, no rebate for both, right? The person who is supposed to pay and the person who is supposed to recover. Average due date does not change to, right, is same basically for both the parties. Second, how to calculate average due date? There were two types अभी तक हमने देखे थे. First type, when there is one-way transaction, means one party is a seller, another party is a buyer. Means the buyer is supposed to pay to the seller. ठीक है? So when there is a one-way transaction, the other, right? The type two was when both-way transaction, means you are receivable as well as, right, you have payable. Type one में either you have to pay or either you have to receive. दोनों में से एक रहेगा for a given party. In the type two, you have to receive as well as you have to pay. Type 3 and type 4 अभी तक हमने डिस्कस नहीं किए. They are very simple basically. So first, write down the dates of transaction, amount of the transactions, find out the due date. If they are the bills, then the period plus 3 grace days is the due date. Period plus 3 grace days is the due date. If they are just the invoices and not the bills, so just add the period. If the period is in the months, add months, month on month. If period is in the number of days, then we have to specifically calculate number of days. Then you will find, right, the due date. Then you can take any date as a base date. Even you can take other than the due dates that you have arrived. कोई भी date आप due date ले सकते हो. However, for the purpose of calculation, to make calculation simple, we should take, right, the earliest due date. जो हमें due dates मिले हैं, उनमें से earliest due date को base date ले लो. And taking the earliest due date as a base date for both receivable as well as payable, सबके लिए due date एक ही रहेगी. सबके लिए due date एक ही रहेगी. By taking the earliest due date as a base date, calculate number of days from base date till each due date. Base date till each due date. Base date till each due date. Number of days calculate करोगे. Then you have to take the product amount multiplied by number of days from the base date till the due date, and then take the summation. If it is either receivable or payable type 1, summation will be always positive. Amount receivable or payable जो भी रहेगा वो positive रहेगा. ठीक है? If it is both receivable as well as payable, amount, right, amount may be receivable or may be payable, मतलब positive or negative, and product may be positive or negative. Accordingly, your final sign, whether plus or minus, will be decided. Then, formula was average due date is equal to base date plus or minus. ADD is equal to base date plus or minus into bracket summation of the product divided by summation of the amount in the number of days, number of months, as the case may be. आपने किस में वो calculation किया है. So then whatever is your answer is your average due date. If you're making the payment, actual payment after average due date, if making the lump sum payment after ADD, you have to pay the interest. If you're making the payment before the average due date, you are making early payment, you will get a rebate. Clear? Eh? In the type 1 questions, the average due date always lies between the extreme due dates. Extreme due dates के बीच में average due date lie करेगी. That was a rule. And in case of two-way transactions, receivable as well as payable,
Your average due date may fall before the extreme due dates as well, between or before, because वहां पे आंसर प्लस माइनस माइनस भी आ सकता है. Are you getting my point? So you have to be careful. Clear? So let's start. Average due date. Let me share my screen. Okay. अच्छा, हमने खाली इतना कुछ लिखा नहीं था, हमने एक कंसेप्ट मैंने यहाँ पे सिखाई थी आप लोगों को, राइट ना. ये पॉइंट इंपॉर्टेंट था. ड्यू डेट ऑन विच द आउटस्टैंडिंग अमाउंट इज टू बी सेटल्ड. ड्यू डेट इज अ ड्यू डेट is date of transaction plus credit period. In case of bills, add 3 days as a grace days. बराबर. फिर मैंने कंसेप्ट प्रॉब्लम लिया था अमर एंड प्रेम का, and we have proved, right? If you make the payment on the average due date, right, the person was not supposed to pay any interest. बराबर ना. हमने क्या बोला था, instead of making payments on different due dates, make lump sum payment on a single date. That is a concept without any interest. Then ये उसका प्रूफ था. And these were my steps. Calculate the due dates of each transaction. Take earliest due date as a base date, that is 0 date, and calculate number of days from the base date to each due date. Calculate the product amount multiplied by number of days from the base date, and then average due date is equal to base date plus or minus summation of the product divided by summation of the amount into number of days. This is not the interest question. ये just calculation type to find out the interest. ठीक है? So let's start. I remember I had given some 3 questions for the homework. I will solve those 3 questions today so that you will revise हो जाएगा आपको. अच्छा, कौन कौन से क्वेश्चन थे लास्ट के 3 थे कुछ तो. Anyone can tell me question number 18, 19, 20 or which, if you remember, या भूल गए सब लोग. Keep studying. अगर आप, if you are not punctual, then it's very difficult. देखो, प्रिलिमिनरी हमने किया है, जर्नल एंट्रीज किया हमने, जर्नल एंट्रीज पूरे किए थे हमने, ठीक है. हमने रेक्टिफिकेशन किया, बिल्स ऑफ एक्सचेंज किया, एवरेज ड्यू डेट कर रहे हैं, ये हो जाएगा इस वीक में. फिर हम अकाउंट करंट करेंगे नेक्स्ट वीक में, सेम चैप्टर, 5 मार्क के क्वेश्चन में अकाउंट करंट करेंगे, 5th चैप्टर हो जाएगा. देन सोल प्रोप्राइटरशिप फाइनल अकाउंट करेंगे एंड बिल्स ऑफ एक्सचेंज करेंगे. कितने चैप्टर्स हो जाएंगे? 7 चैप्टर्स हो जाएंगे आउट ऑफ 15 चैप्टर्स. 7 चैप्टर्स आउट ऑफ 15 चैप्टर्स हो जाएंगे. And they obviously we are doing economics side by side. Or economics, I require 50 lectures in detail to ask 50 lectures. पूरा economics हो जाएगा. So by before we close for the 12th, तुम्हारा 50% अकाउंट का सिलेबस एंड इकोनॉमिक्स पूरा हुआ होगा. So ये समझ लेना, if you don't study, it is of no use. There is no point in joining annual batch day. You are wasting your time. वैसे भी वेस्ट होने वाला था और ऐसे भी कर रहे हो. So better, right? अब मॉर्निंग में लेक्चर हो रहे तो मॉर्निंग में जल्दी उठना है. अगर इवनिंग में होते, आई विल बी टेकिंग सम लेक्चर्स इन द इवनिंग. इवनिंग में मुझे ज्यादा टाइम मिलता है. मॉर्निंग में सबके कॉलेजेस होते हैं, तो इवनिंग में यू हैव सीन हमने सैटरडे भी लिया था. वी यूज्ड टू टेक ऑलमोस्ट 2.5 hours. मॉर्निंग में किसी का 8:30 का कॉलेज है या क्या है. सो बट यस, वी हैव टू अकोमोडेट. सो जैसे हो रहा है, आई एम ट्राइंग टू रिकवर दैट इन द इवनिंग. कोई प्रॉब्लम नहीं. और इवनिंग में स्पीड भी अच्छा मिलता है. लेट्स स्टार्ट. कोई प्रॉब्लम नहीं. ठीक है. इफ यू डोंट स्टडी देन इट इज ऑफ नो यूज. एंड योर टाइम यार, आपके जैसा टाइम, यू आर लकी, यू गेट द टाइम. 18, 19, 20. थैंक यू मैम. राइट, लास्ट के 3 इतने मुझे याद थे. 18, 19, 20. वी विल सॉल्व 18.
TOK. TOK मतलब T is a debtor, K is a creditor. एंड योर मैंने कब बोला है, वेडनेसडे को टेस्ट है आपकी, राइट ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज एंड रेक्टिफिकेशन, प्रिपेयर फॉर इट. TOK the following amounts. So T is a debtor, K is a creditor. 7,000 due on. They have given a due date. 12,000 due on, 30,000 due on, 20,000 due on. He desires to make the full payment on 30th June. वो पूरा जो पेमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स है, ये जो डिफरेंट डिफरेंट पेमेंट्स है, he wants to make on a single date, 30th June 2012, along with interest at the rate of 10% per annum from the average due date. Okay, so we have to calculate average due date. Find the average due date and the amount of the interest. Question is very simple. ठीक है, करें स्टार्ट. क्वेश्चन इज सिंपल, एवरीवन. मैं यहाँ पे सॉल्व करता हूँ क्वेश्चन नंबर 12 जो भी है. ठीक है, एक क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करता हूँ, थोड़ा आपको क्लिक हो जाएगा. आई एम अफ्रेड यू इफ यू डोंट स्टडी यू विल फॉरगेट एवरीथिंग. दिस चैप्टर था सिंपल, ये लाइफ में एक ही बार करने के, बट ऐसे करने के ना तो कभी बाद में देखने की जरूरत ना पड़े, डायरेक्टली पेपर को देखने का. एंड 5 मार्क्स आर श्योर ना, 2 मिनट में 5 मार्क्स मिलते हैं. चलो 3-4 मिनट में लगेंगे सबको सॉल्व करने को. 4 मिनट्स में 5 मार्क्स, 3 मिनट्स में 5 मार्क्स, ऑलवेज ए गुड डील. और इसी एग्जाम में हमें एक एक मार्क ढूंढना है, तो ये क्वेश्चन देंगे, सबको देंगे, कोई एंट्री नहीं, कुछ नहीं, कुछ नहीं, खाली कैलकुलेशन. तो लिखो, राइट, इन द बुक्स ऑफ, या कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट फॉर सपोज टी. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट फॉर टी. कैलकुलेशन ऑफ एवरेज रेट फॉर टी. ठीक है, देखते हैं. डेट ऑफ द ट्रायल, दे हैव डायरेक्टली गिवन ड्यू डेट, रियली गुड. ड्यू डेट, they have given you amount. 7,000 is due on 15th March 2012. Still there are 10 to 20 students who are absent. मतलब क्या बोला जाए, 12,000 is due on 5th April. 30,000 is due on 25th April. 20,000 is due on 11th June. ठीक है, this is due date, this is amount, due date and amount. ठीक है, then रुपीज, सॉरी, पहले बेस डेट क्या लेने वाले हम लोग. बेस डेट will be the earliest due date. Base date should be earliest due date. Base date should be earliest due date. 15th March. Number of days
from base date. Number of days from the base date. So 15 मार्च से 15 मार्च 0 ऑब्वियसली. 15 मार्च से 5 अप्रैल. मार्च में 31 डेज minus 15, 16 plus 5, 21 days. 15 मार्च से 25 अप्रैल. मार्च के 16 days plus 25 days of April. 16 plus 25. 41. Then मार्च के 31 minus 11. 31 minus 11. 20 days of March plus 31 days of May. अप्रैल के यहाँ पे अप्रैल के 31 days, 30 days, 30 days of April, then 31 days of May plus 11 days of June. So this is 31 minus 11. मार्च के 31 minus 15. 16 days of March, 30 days of April, 31 days of May, 11 days of June. 88. कंफर्म करो, है क्या बराबर? Everyone, is the number of days correct? Yeah. So now go for the product. Okay. 7,000 multiplied by 0, 0. 12,000 multiplied by 21. 2,52,000. 30,000 multiplied by 41. 12,30,000. 20,000 multiplied by 88. सब टोटल बोलो चलो जल्दी. Is it 32,40,000? Be very prompt. सोना मत. 32,42,000. 11 June है वो. 32,42,000. 32,40,000. Therefore, what is the sum of the amount? 7,000 plus 12,000 plus 30,000 plus 20,000. पिंक करते चलो दे मुझे आंसर. 69. जिसका हुआ है 69,000. Yeah. Therefore, ADD base date plus ही रहेगा because it is one way transaction. Receivable और इधर payable. प्लस और माइनस है तो लिखो कुछ नहीं. Sum of the amount. Sum of the product divided by sum of the amount. Therefore, base date is 15th March 2012 plus 32 lakhs 42,000 divided by कुछ तो अलग डेज बोल रहे हैं आप लोग. 52 डेज कैसे आएगा फिर? अगर 32 lakhs 42,000 है डिवाइड बाय 16 करूंगा तो 47 डेज आनी चाहिए. तो यहाँ पे लिखो 46 point something, so 47 days.
प्रेफरेबली वो चैट में टाइप करो रे, क्या होता है ना, क्वेश्चन आंसर में टाइप मत करो, वो इट बिकम्स वेरी डिफिकल्ट, ट्रेस रखना मुझे वो, ठीक है। अच्छा वो जो भी है ना इधर डालो, ओके। +47 डेज लेना होगा मुझे ग्रॉस, राउंड ऑफ करके। 0.5 आगे है तो अगला वाला डे ले लो, अगर उससे कम है तो प्रीवियस दे देना। सो 16 days of March, 47 minus 16, 31 days, 30 days of April, and 1 day of May. Perfect. या परफेक्ट। जून नहीं रे, फर्स्ट में ना, फर्स्ट में आएगा, बीच में अप्रैल है ना, मार्च के बाद अप्रैल, अप्रैल के बाद मई, इट इज फर्स्ट में, आरती इज फर्स्ट में। गुड। आप लोग ऐसे फर्स्ट में पब्लिक हॉलिडे वगैरह कुछ नहीं है, एवरेज स्टूडेंट के लिए उसको कोई, एवरेज स्टूडेंट कैन फॉलो ऑन इन नीडेड इफ इट इज अ पब्लिक हॉलिडे, इट इज ए डिस्कशन बिटवीन द पार्टीज टू डिसाइड द एक्चुअल ड्यू डेट। ऐसे बिल्स ऑफ एक्सचेंज जैसा नहीं कि पब्लिक हॉलिडे है तो प्रीवियस वर्किंग डे, अगर इमरजेंसी हो तो नेक्स्ट वर्किंग डे, ऐसे ईडीडी के लिए नहीं। ठीक है, आगे नेक्स्ट। तो लिखो, एक स्टेटमेंट लिख देना, इफ टी पेज, इफ टी पेज, एक कमेंट्री लिखो उस डेट का ईमेल, इफ टी पेज रुपीज, इफ टी पेज रुपीज हाउ मच, 69,000 2K on 1st May, if T pays entire amount to K on ADD, right, then he is not supposed to pay any interest, any interest, ठीक है, he is not supposed to pay any interest. However, he makes the payment on, उसने पेमेंट कब किया, he makes the payment on 30th June. अगर वो फर्स्ट में को पे करता कुछ भी पे नहीं करना है, बट उसने फर्स्ट में को पेड नहीं किया, 30 जून को पेड किया। 2012, therefore number of delayed days, number of days for the which payment is delayed, number of days for which payment is delayed, बोलो कितने रहे, 60 days, okay। मे के 31 डेज होते टोटल, मे के 31 डेज, पेमेंट करना था फर्स्ट मे को, तो आपने उसके 30 डेज प्लस जून के 30 डेज, सो इंटरेस्ट, इंटरेस्ट एट द रेट ऑफ 10% लिखा है ना, इंटायर अमाउंट, कितनी अमाउंट है, लेट मी चेक, 69,000 मल्टीप्लाई बाय 10% multiply by 60 days. Always take 360.
days count convention, if you remember, 69,000 multiplied by 10% multiplied by 60 divided by 365. Interest is 1134. .25. सो नीचे लिख लेना, इसका ही मतलब टी शुड पे के 69,000 प्लस इंटरेस्ट 1134. टोटल अमाउंट इज 70,134.25. 70,134.24. ठीक है, गुड मैम. संजना करेक्ट है, सही सही करेक्ट है. प्रणोति करेक्ट है. जॉनी करेक्ट है तेरा. सो गुड, लिख लेना. एंड दीज आर द स्टेप्स. दिस क्वेश्चन विल बी कंपल्सरी फॉर 5 मार्क्स. मैं आपको बोल रहा हूँ, ध्यान रखना ही मेरी बात. आपको लगेगा पास होना बहुत डिफिकल्ट है. पास होना डिफिकल्ट नहीं है, सच्ची में नहीं है. अगर आप मार्क्स कहाँ से आपको इजीली मिलेंगे ना, अगर उतना आपको समझ में आ गया ना, तो पास होना डिफिकल्ट नहीं. बच्चों को यही नहीं समझ में आता कि मार्क्स किधर से लेने. ये जो चैप्टर्स है ना, बिल्स ऑफ एक्सचेंज, रेक्टिफिकेशन, ये एवरेज ड्यू डेट, उसके बाद अब अकाउंट करंट करेंगे. सिमिलर क्वेश्चन है, सिमिलर, खाली फॉर्मेट चेंज होगा. वो भी 5 मार्क के लिए. इट्स इजी. फिर हम इसके बाद सोल प्रिपेयरशिप करने वाले हैं, 10 या 15 मार्क का क्वेश्चन. 12 जितना सिंपल नहीं है, डिफिकल्ट है, बट वो करने से आपका 12th फाइनल अकाउंट्स और एनपीओ और अच्छे से हो जाएगा. इसलिए मैं वो 12 के साथ लेता हूँ, बहुत अच्छे से हो जाएगा. बट दैट विल बी इन द इवनिंग, बिकॉज वो क्वेश्चन बहुत लेंदी रहेंगे. तो इसलिए आई नीड टाइम, 2 hours to 3 hours डेली, 15 दिन, 2 weeks. ठीक है, क्लियर है. एंड देयर विल बी टेस्ट ऑन एवरेज ड्यू डेट एज वेल. मैं एवरेज ड्यू डेट के भी क्वेश्चन डाल दूंगा एक दो. सो रेक्टिफिकेशन, बिल्स ऑफ सॉरी, रेक्टिफिकेशन, डीआरएस एंड एवरेज ड्यू डेट. ठीक है. देन आगे, गुड. नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन. कौन सा होगा? अच्छा, हम टाइप 1 क्वेश्चन पे ही थे क्या? अच्छा ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं. मुझे लगा हम टाइप 2 के लास्ट पे. कोई दिक्कत नहीं. क्वेश्चन नंबर 19. क्या लिखा है क्वेश्चन में, पढ़ो. Messrs. Stairs and Company draws upon Messrs. Marbles and Company several bills. These are the bills. Bills of exchange. Several bills. ठीक है. They are drawn upon Marble and Company several bills for the payment on the different due dates. Okay. कोई दिक्कत नहीं. आगे, date of the bill, amount of the bill, tenure. यहाँ पे ड्यू डेट. मंथ है तो बहुत इजी. 15 मई से 3 months, मई से जून, जुलाई, अगस्त. 12th August plus 3 grace days. Plus 3 grace days. 15th August. 15th August is a public holiday. Bills के केस में you have to take the previous working day. 14th August. ठीक है, आगे. 10th जून से 4 month. जून से जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, 4 months. 10th October plus 3 grace days. 13th October. जुलाई से 1, जुलाई से अगस्त. 3 plus 1, 4 August. 19 जुलाई से 2 month. जुलाई से अगस्त, अगस्त से सितंबर. 19 plus 2, 22nd September. बराबर, लिखो. नंबर ऑफ डेज from base date.
from base date. Number of days from the base date. अच्छा नीचे कुछ लिखा है क्या? 22 सितंबर इज डिक्लेयर्ड इमरजेंसी हॉलीडे. सो 22 सितंबर इमरजेंसी हॉलीडे, तो हमें उसको नेक्स्ट वर्किंग डे लेना होगा 23rd. ठीक है, गुड. नंबर ऑफ डेज निकालने फ्रॉम बेस डेट. विच विल बी द बेस डेट? अर्लीस्ट ड्यू डेट. 4th August take as a due date. Base date. 4th August due date take as a base date. So 4th August से हमें where to find the number of days till 14th August, 13th October, 23rd September. तो पहले तो इसके नंबर ऑफ डेज जीरो रहेंगे. जो बेस डेट रहेगी उसके तो नंबर ऑफ डेज, इसके लिए इसको जीरो डेट भी बोला जाता है. 4th August बेस डेट को जीरो डेट भी बोलते हैं. ठीक है, यहाँ पे 10 डेज रहेंगे. सितंबर, अच्छा अगस्त में 31 डेज, उसमें से 4 डेज हो चुके हैं. सो 27 डेज ऑफ अगस्त, 23 days of September. Is it 50 days? Yes. अक्टूबर तक ढूंढने. अगस्त में 31 डेज, उसमें से 4 डेज हो चुके हैं. 4th अगस्त के आगे जाना है ना, सो 4th को एक्सक्लूड करना है. 4th को एक्सक्लूड करना है. ठीक है, आगे प्लस अगस्त के बाद सितंबर, सितंबर में 30 डेज और अक्टूबर में 13 डेज. 27 plus 30 plus 13, is it 70 days? Yes. Good. So product, ले लो. 44,000 multiply by 10, it is 4,40,000. 4,40,000. Then 45,000 multiply by 70, 31,50,000. ये तो जीरो रहेगा. एनीथिंग मल्टीप्लाई बाय जीरो इज जीरो. 17,000 मल्टीप्लाई बाय 50, 8 लाख. एमआरसी 44,40,000. 44,40,000. चेक करो बराबर है क्या? 44,40,000. सम ऑफ द अमाउंट 44 प्लस 45 प्लस 14 प्लस 70, 120 पे 30. 1,20,000 ये बराबर है 40 lakhs, 44,40,000. Therefore ADD, बस उन्होंने बोला है फाइंड आउट द ADD. ADD is equal to base date which is 4th August plus sum of the amount 44,40,000 divided by sum of the product 1,20,000. 44,40,000 divided by 1,20,000, 37 days. 4th August से 37 days. अगस्त में 31 minus 8, 4, 27 days of August plus 10 days of September, 10 September is average due date. लिखो, is your average due date. Give time for your study. मैं आपको झूठ नहीं बोल रहा. You are lucky. You don't have to travel anywhere. No need to attend school.
वो आप लगा दो ना वो मोबाइल, थोड़ी अटेंड करना, कोई आपको थोड़ी क्वेश्चन पूछता है, लगा देने को अपने अपनी पढ़ाई करने की, किधर बाहर जाना नहीं आना नहीं। तो यू यू हैव योर टाइम यार, ये टाइम मिलता नहीं, वर्क ऑन इट, स्टडी करो। और जो चैप्टर्स हुए ना इतने परफेक्शन पे लेके जाओ ना कि बाद में करने की भी जरूरत ना पड़े, बिकॉज योर टाइम यू कैन वर्क ऑन इट। एंड इफ एनी डाउट आस्क मी, आई विल टेक, राइट, आई विल सॉल्व योर डाउट्स। बट हो गया चलो बाद में करेंगे, बाद में करेंगे ना कुछ नहीं होता। 12th के बाद बड़े बड़े एकदम बड़े बड़े चैप्टर्स आ जाएंगे। एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम ऑब्वियसली वी विल फेस टू फेस, बट इतने बड़े चैप्टर्स रहेंगे ना, ये चैप्टर्स को टाइम ही नहीं मिलेगा। सो अब भी हो रहे हैं ना, इतना परफेक्ट करो कि बाद में टेंशन ना रहे। एंड नोट्स में से करो, ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, गुड। दिस वाज द लास्ट क्वेश्चन। Essence of the bill means tenure of the bill. The other term, tenure of the bill. Let's start. Hmm. Date of the bill, amount and tenure of the bill. ठीक है, date of the bill, tenure is one, therefore due date. 20th जनवरी से 1 मंथ, फेब्रुआरी आ जाएगा, 20th फेब्रुआरी आ जाएगा 2018। 18 इज नॉन लीप ईयर, तो 28 डेज ही रहेंगे। 20th फेब्रुआरी से 3 ग्रेस डेज बिल है ना, 1st जनवरी, 2nd जनवरी, थर्ड सॉरी 1st मार्च, 2nd मार्च, 3rd मार्च। बराबर। देन 20th मार्च से 2 मंथ चाहिए, 20th मार्च से 2 मंथ, मार्च से अप्रैल, अप्रैल से मई, 20 + 3 23rd मई, 18। 12th जुलाई से 1 मंथ, जुलाई से अगस्त, 15th अगस्त आएगा, 12 + 3 15th अगस्त, प्रीवियस वर्किंग डे बीइंग पब्लिक हॉलिडे, 14th अगस्त, 10th अगस्त से 2 मंथ, अगस्त से सितंबर, सितंबर से अक्टूबर, 13th अक्टूबर। नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डे, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट, नंबर ऑफ डेज फ्रॉम द बेस डेट। अच्छा, you have to take which date as a base date? 3rd मार्च से, चलो मार्च में 31 - 3, 28 डेज ऑफ मार्च, अप्रैल के 30, 23 डेज ऑफ मई, 81। दिस इज 72। अक्टूबर के कितने डेज आ गए ने, अक्टूबर के, इज इट 224? यस, बराबर है ना, 81, 72 एंड 224, गुड। देयरफॉर प्रोडक्ट, 0, 4000 multiplied by 81, 3,24,000, 7,000 multiplied by 72, 5,04,000, 6,000 multiplied by 220,
13 lakhs 44. 21 lakhs 70,000. Sum of the 9 plus 6, 16, 22 दिख रहा है. Base date which is 3rd August. Plus or minus 21 lakh 70,000 divided by 22,000 into days. सब calculation days में. 98.72, that is 99. Is it 99 days? Sir, your third due date is wrong. It should be 14th August. बराबर है. बराबर है. वो अगस्त है ना, एक डेज पहले लिया ना. So number of days will change now. 31 minus 3. 28 days of March, April, May, June, July, August. I think 164 days आ रहे ना. Multiply by 7. प्रोडक्ट चेंज हो जाएगी अब. इज इट 28 lakhs कितनी है? 16,000. कंफर्म करो. इज इट सेम? 28 lakh 16,000. 28 lakh 16,000 कंफर्म करो. या आपने नहीं किया अभी तक? इट इज टोटल 128 डेज आ रहे हैं एग्जैक्ट. थर्ड अगस्त से 128 डेज. क्या क्वेश्चन है सर? हाउ वी गेट 14th में? अरे वो अगस्त लिखने की जगह बोला अगस्त, लिखते टाइम में लिख दिया. ठीक है, आगे. कंफर्म करो ना बराबर के नंबर ऑफ डेज, या भी आप कैलकुलेट कर रहे हो? नहीं, नंबर ऑफ डेज बराबर के 128. अच्छा, सो योर ड्यू डेट विल बी 3rd मार्च से 128 डेज 9th जुलाई. चेक करो, बच्चों ने आंसर दिया 9th जुलाई. एडीडी इज 9th जुलाई और 9th अगस्त. कोई जुलाई बोल रहा है, कोई अगस्त बोल रहा है. मार्च के 28 डेज, अप्रैल, मई, जून, जुलाई रहेगा, जुलाई रहेगा. अगस्त नहीं. ओंकार, इट इज अगस्त. अगस्त नहीं, ये जुलाई होना चाहिए. कंफर्म करो. 9th जुलाई शुड बी द ड्यू डेट. एडीडी मींस द पर्सन शुड कैंसल ऑल दिस 4 bills. ध्यान देना, पर्सन, द ड्रॉवी शुड कैंसल, या ड्रॉवर शुड कैंसल all the 4 bills and should draw a single bill. Should draw a single bill of 22,000 to be payable after adding 3 grace days on 9th July. नीचे लिखने कमेंट लिख देना, ड्रॉवर शुड कैंसल. कमेंट लिख देना, ड्रॉवर इस डेट का अहमियत क्या है, 9 जुलाई का लिख लेना. ड्रॉवर शुड कैंसल, ड्रॉवर शुड कैंसल, ड्रॉवर शुड कैंसल all the 4 bills, should cancel all 4 bills and draw a single bill of rupees 22,000. Drawer should cancel all 4 bills
and should draw a single bill of rupees 20,000 payable after adding 3 grace days. Payable after adding 3 grace days. मतलब that is a legal due date. Payable, that is into bracket, after adding 3 grace days on 9th July 18, 2018. 9th July 2018. ठीक है, चलो. Now we can move to the type 2 questions, right? लिख लेना. जल्दी करो. Your percentage, right? Now question number 21. ध्यान देना, कुछ अलग नहीं है. पहले जो किए ना, या तो रिसीवेबल था या तो पेएबल था. अब इसमें दोनों रहेंगे. प्रोसीजर इज द सेम, कुछ भी अलग नहीं है. ध्यान देना. क्वेश्चन नंबर 21. एवरीवन, Mr. Green and Mr. Red had the following mutual dealings and desired to settle their account on the average due date. These are the mutual dealings and they want to settle their account on ADD. So we have to find out ADD. Purchases by Green from Red. Purchases by Green from Red. अच्छा, आपको डिसाइड करना है किसके पॉइंट ऑफ व्यू से निकालना है. अगर आप ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो, दीज आर पेएबल्स. अगर आप रेड के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हो, दीज आर रिसीवेबल्स. चलो हम ग्रीन के पॉइंट ऑफ व्यू से निकालते हैं. ठीक है. Purchases by Green from Red. So Green is supposed to pay this amount, right? And sales by Green to Red. ये receivables है, दोनों है ना इस क्वेश्चन में. ठीक है. You are asked to calculate ADD. Sir, they are not given us credit period. हमें date of transaction दिया है, purchase की date दिया है, but they are not given us credit period. If credit period is not given, date of transaction itself is the due date. अगर हमें क्रेडिट पीरियड ही नहीं दिया है क्वेश्चन में, तो डेट ऑफ ट्रांजैक्शन इटसेल्फ इज अ ड्यू डेट. सो दीज आर द ड्यू डेट्स ओनली. ठीक है. हाउ टू कैलकुलेट? लेट्स स्टार्ट. लेट मी ओपन माय एक्सेल. एवरीवन, या यू कैन पुल. आप पुल भी कर सकते हो. पता है क्या पुल कर सकते हो? मतलब क्या कर सकते हो कि आप आपके बाजू में कोई रहता है तो 2-3 कोई जा रहा है तो उसको बोलो, या अगर आपके एरिया में कोई रहता है और उस एरिया में आता है कैंप एरिया में, तो उनको बोलो वी विल गिव यू. खाली आपका नाम होना चाहिए.